As well as we will leave it now to the central government to respond to the charge of vendetta. But I appreciate my panelists joining us. I've run completely out of time on this story. I have to move to the next story because there's another war which is raging on at the moment. And this is between the chief ministers of Telangana and Andhra Pradesh over the cash for vote scandal. Now the fallout has been witnessed today on the streets of Hyderabad. Take a look at those pictures. Supporters of both parties belonging to rival states, neighboring states, seen clashing outside the Telugu Desam office, even using slippers to hit at each other. Chandrababu Naidu has landed in Delhi, is now expected to meet the Prime Minister tomorrow. He's also expected to meet the President. Both the warring CMs issuing a warning against each other today. TRS government హెచ్చరిస్తున్నా దయచేసి ఆలోచించండి రాష్ట్రాల మధ్య తగరాదు వద్దు రాష్ట్రాల మధ్య తగరాదు పెట్టుకుంటే చాలా దూరం వెళ్తుంది నీకెన్ని అధికారాలు ఉన్నాయో దానికంటే ఎక్కువ అధికారాలు నాకు ఉన్నాయి నేను గాని కన్ను తెరిస్తే మళ్ళీ నీకు చాలా కష్టాలు వస్తాయి ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు ఏం మాట్లాడతాడు చంద్రబాబు నాయుడు నీకు ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా ఆయన ఏమంటాడు కేసీఆర్ హైదరాబాద్ మీద నీకు ఎంత హక్కు ఉందో నాకు అంతే హక్కు ఉందో అని మాట్లాడతాడు నీ అబ్బా జాగీరా చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ నీ తాతదా ఇవాళ హైదరాబాద్కు నువ్వు కాదు ముఖ్యమంత్రివి తెలంగాణ బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి. Okay, let's then turn to the other big political story. A combative Congress President Sonia Gandhi and Vice President Rahul Gandhi today attacked the Narendra Modi government. This after Mrs. Gandhi chaired a meeting of Congress chief ministers in the national capital. She accused the Modi government of engaging in what she called a dangerous, duplicitous game by allowing his colleagues to create an atmosphere of fear and foreboding and fomenting communal polarization. Listen in to what she had to say. Our own UPA programs, yojanas, which have actually been appropriated by the Modi government with slight changes here and there. We discussed what is the effect on the state, particularly because the financial allocation for these programs has been slashed, naturally causing problems for our states. मेक इन इंडिया के बारे में बोला, मेक इन इंडिया के बारे में बोला कि भाई बहुत अच्छा लोगो है, बहुत बड़ा शेर है, मगर शेर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और रोजगार जो आना चाहिए था, जो मोदी जी ने वायदे किए थे रोजगार के वायदे, वो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें उठी थी। Okay, that was Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. Okay, let's turn to Bihar, where a day after the Janata Parivar announced its alliance, it appears that the secular alliance, or the so-called secular alliance, could now be much more broad-based. The Congress and the NCP are likely to come together, is what we are told. The NCP also is saying they will support the alliance of the RJD and the Janata Dal United. And I spoke earlier today to Lalu Prasad on whether this alliance will actually last. And I began by asking him the big question. Lalu ji, ये बताइए, सब कह रहे हैं कि ये जो आपने नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया है चीफ मिनिस्टर, ये जो अलायंस आपने बनाया है, ये आपने दबाव में बनाया है. You were under pressure, you have done this under pressure, आपकी मजबूरी थी, it was your compulsion. अब ये बात सुनो, ये 6 महीना से जनता दल परिवार का हम लोग कवायद शुरू किए हैं और रामगोपाल जी का फैसला हुआ था कि भाई अभी तत्काल तकनीकी कारण है, इसलिए बिहार का चुनाव गठबंधन के आधार पर लड़ा जाए जी। और गठबंधन के आधार पर खास करके बीजेपी, आरजेडी और जदयू दोनों मिलकर के चुनाव अपने अपने चुनाव चिन्हों पर लड़े। इसमें बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लालू जी, बात को जनता का इतना प्रेशर था कि भाई आप लोग चुनाव नजदीक आ गया, क्या फैसला लिया? और हम अपना पक्ष हमने पहले ही रख दिया था। नहीं कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, हो नहीं सकते हैं, हमारे घर में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को घर वापसी का सबक सिखाना है हमको बिहार के मैदान में। लेकिन लालू जी, आपने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो हम बाद में भी अनाउंस कर सकते हैं,
लेकिन अचानक आप स्वीकारते हैं नीतीश जी का नाम, तो इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ दबाव में आपने ये निर्णय लिया था, कहीं आपको डर था कि आप अकेला पड़ रहे हैं, इसलिए आपकी मजबूरी बन गई। खास करके जब नीतीश और राहुल की मीटिंग हुई उसके बाद दबाव पे कहीं ना कहीं दबाव था आप पर। नहीं, किस चीज का दबाव भाई? नीतीश तो हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, किस बात का दबाव है भाई? ये बीजेपी का आरएसएस का षड्यंत्र चल रहा है कि पहले तो कह रहे थे मिलेगा ही नहीं लोग, जब कल हम लोग मिल गए, ऐलान कर दिया, तब बोलते हैं कि भाई दबाव में हो गया, प्रेशर में आ गए। लालू जी, दबाव इस बात का है कि संडे को राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, मुलायम सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और आपको धीरे धीरे डर लगने लगा कि आप अकेला पड़ जाएंगे अगर आप नीतीश जी का समर्थन नहीं करेंगे, गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल थोथी दलील थेथरोलॉजी में आरएसएस बीजेपी का मीडिया एक्सपर्ट है। इसमें राहुल गांधी से मिलने से, आप नहीं मिलने से यहाँ कहाँ सवाल उठता है? इनसे मिलना चाहिए सबसे। हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ सबके साथ रहे। ये दबाव, एक दिन में कोई दबाव होता है क्या लालू जी? लेकिन एक कहीं ना कहीं क्या आप मानेंगे कि ये जो चुनाव आपके हैं, आपके लिए है, दिस इज डू और डाई नाउ, करो या मरो। अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी बिहार जीतते हैं तो एक तरह से आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। अरे कैसे खत्म हो जाता, कैसे आ जाएगा बीजेपी? ये पॉलिटिकल करियर, आज हम लोग हार गए, पूरे देश में हार गए, तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया सर। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो कहा है कि ये अलायंस जो है करप्ट लोगों का अलायंस है, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, अवसरवादियों का अलायंस है। किस तरह से आप क्या जवाब देंगे जब बीजेपी, नरेंद्र मोदी जाएंगे और कहेंगे वही नीतीश कुमार जो एक समय लालू को कहते थे जंगल राज, या वही लालू प्रसाद जिसे करप्ट किया कहा जाता था, या आप नीतीश को कम्युनल कहते थे, आप लोगों का ये गठबंधन हुआ है, अपॉर्चुनिस्ट करप्ट अलायंस? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इनके बात को अब जानते कौन करप्ट है नहीं है, इनको पता लग जाएगा। लेकिन ये अवसरवादी बात है क्या? लेकिन ये बताइए लालू जी, अगर नीतीश जी अब सीएम के दावेदार है, इफ नीतीश जी बिकम्स चीफ मिनिस्टर, अगर वो बनते हैं, आपका क्या रोल रहेगा? व्हाट विल बी योर रोल इन पॉलिटिक्स नाउ? लालू यादव का निर्माणकर्ता के रूप में देश को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए लालू यादव का नाम सबसे ऊंचा रहेगा कि लालू यादव ने बीजेपी को बिहार के चुनाव से इनको फटकने न दे करके घर वापस कर दिया, घर में इनको बैठा दिया। इसका पूरा क्रेडिट हमको मिलेगा। तो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि सीएम तो बनेंगे नीतीश अगर आप जीत जाएं, आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव एक तरह से अब नीतीश वर्सेस बीजेपी बन गया है, या बीजेपी को भी अपना एक चीफ मिनिस्टर का नाम देना पड़ेगा? चैलेंज आप दे रहे हैं उनको? हाँ, चैलेंज हम मांग कर रहे हैं कि तुम्हारा कौन होगा मुख्यमंत्री, बताओ। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को कह रहे हैं अपना मुख्यमंत्री बना। लोग कहेंगे लेकिन कि ये जो अलायंस आपका है, एक तरह से आप सेक्युलरिज्म का नारा लगाते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं विकास का नारा लगाऊंगा। क्या ये चुनाव मोदी जी एक तरफ, लालू नीतीश एक तरफ, सेक्युलर अलायंस एक तरफ, एनडीए कहता है वो विकास की बात करेगा? ये विकास का, ये विनाश पुरुष है, ये लोग विकास ढोंग है। ये विकास नहीं, ये विनाश के तरफ देश को ले जा रहे हैं। इनका कई एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सब है साकी जैसा लोग, कई एक तरह का कि मंदिर बनाएंगे। अभी याद आ रहा चुनाव में राम जी का मंदिर अयोध्या का, फिर कि नरेंद्र मोदी के समय में हम लोग बना देंगे मंदिर। ये काम कर रहे हैं ये, और कोई अवसरवाद नहीं। इनकी बड़ी भारी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। जो इन लोगों ने ढोंग किया, जो वादा किया 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का, काला धन ला के 15.5 लाख जमा करने का प्रत्येक व्यक्ति का, 24 घंटा बिजली, किसानों के साथ धोखा,
इनका हिसाब किताब इस बार चुकती कर देगी बिहार की जनता। सर ये सब बोलने की बात है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ था 2014 के चुनाव में? इन बिहार इन 2014 द बीजेपी स्वेप्ट यू एंड नीतीश असाइड। क्या आज आप मानते हैं कि आज की तारीख में एज ऑफ टुडे मोदी जी इज इंडिया नेता नंबर 1? अरे देखो, आप मानो ना मानो, मैं नेता नहीं मानता हूँ। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, मैं नेता कैसे आपके कहने से नेता मान लेंगे हम लोग? ये देश में जिस तरह से पीएम है, पीएम है ना, पीएम देश का प्रधानमंत्री होता तो इसमें छा गए, तो जो छा गए हैं तो फिर कुहासा फटेगा भी। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, अगर आज आप नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहे बिहार के बैटल के पहले, क्या कहेंगे लालू यादव नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी को क्या कहना है? नरेंद्र मोदी को कहना था कि जो वादा किया था आप अब फिसल गए, आप फेल हो गए, आपकी सरकार टेकअप भी नहीं की, आपके घर में आग लगा हुआ है, आपको किसी पर विश्वास नहीं है, आपके मंत्री पर नहीं विश्वास है, रामविलास पासवान पर विश्वास नहीं है।